নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু প্ৰসংগ দিল্লী নিৰ্বাচন নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে দিল্লীত চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িল বিজেপি দল সুদীৰ্ঘ 27 বছৰৰ মূৰত পুনৰ দিল্লীত চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে বৰ্তমানলৈকে 47খন আসন লাভ কৰিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে এখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বিপৰীতে আম আদমি পাৰ্টিয়ে বৰ্তমানলৈকে জয়লাভ কৰিছে 21খন আসনত এখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আপে বিজেপিৰ সুনিপুণ ৰণনীতিত মুখ ঠেকেচা খালে আম আদমি পাৰ্টিয়ে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে দিল্লীৰ মসনদ দখল কৰাৰ স্বপ্ন ভংগ হল আম আদমি পাৰ্টিৰ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰিছে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পৰাজয় বৰণ কৰিছে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া কেজৰিৱালৰ ভাষ্য আহিছে नमस्कार आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं जनता का निर्णय सर माथे पर मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पानी के क्षेत्र में बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा जनता के सुख दुख में काम आना व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं वो बहुत शानदार चुनाव लड़े बहुत मेहनत की उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा इसके लिए मैं उन सबको सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं नमस्कार हम देख रहे हैं कि अभी बात नहीं कर रहे और भगवंत मान भी आ गए हैं पंजाब से अब देखिए वो तो पार्टी का जो फैसला होगा हम तो उसी के साथ हैं ठीक है পাৰ্টিৰ যিসকল সদস্য বা যিসকল আম আদমি পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা গতিকে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত কিছু ভাষ্য তেওঁলোকে দিছে তাৰ উপৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছো বিজেপিৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত তেওঁলোকে এনে ধৰণে উৎসৱ মুখৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকে মিঠাই বিতৰণ কৰিছে নাচিছে বাগিছে মুঠৰ ওপৰত 27 বছৰৰ পিছত তেওঁলোক উল্লাসিত হৈ পৰিছে স্ফূৰ্তি কৰিছে আনন্দ উৎসৱ পালন কৰিছে আৰু কৰিব লগা কথা কাৰণ সুনিপুণ তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছিল গতিকে সেই ৰণকৌশল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সেই তাৰ পূৰ্বে আচলতে কেৱল নিৰ্বাচন বুলিয়ে নহয় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰে পৰা তেওঁলোকে দিল্লী দখল কৰিবৰ বাবে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে জবৰদস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল যিমান পাৰে তেওঁলোকে প্ৰতিটো সুখ গুণ আচলতে তেওঁলোকে চাইছিল পৰ্যালোচনা কৰিছিল ক'ত দিল্লীবাসী ৰাইজৰ ক্ষোভ আছে ক'ত দিল্লীবাসী ৰাইজৰ অভাৱ আছে ক'ত দিল্লীবাসী ৰাইজে ভাল পাইছে ক'ত বেয়া পাইছে গোটেইবোৰ তেওঁলোকে আলোচনা পৰ্যালোচনা বিবেচনা কৰি তেওঁলোক আগবাঢ়িছিল আৰু তেওঁলোকে যিটো ষ্ট্ৰেটেজি বা ৰণকৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছিল সুনিপুণ ৰণকৌশল ব্যৱহাৰ কৰাৰ অন্তত আজি 27 বছৰৰ পিছত তেওঁলোকে দিল্লী দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইফালে আপৰ কেইবাগৰাকীও বেয়াগুম নেতা ধাৰাসাৰী হৈ পৰিছে নতুন দিল্লীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তাৰ পিছতে তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে সেয়া আমি শুনাইছো আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি দুটা দৃশ্য এতিয়া দেখুৱাই গৈছো এটা হৈছে এয়া ঢোল বজাই তেওঁলোকে বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে আজি তেওঁলোকে বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে তেওঁলোকে মিঠাই বিতৰণ কৰিছে ইজনে সিজনক মিঠাই বিতৰণ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে আমি কৈছো যেহেতু একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰে দিল্লীত এবাৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব এক্সিট পলতো ঠিক তেনে ধৰণে দেখুৱা গৈছিলে ব্যৱধান খুব কম দেখুৱা গৈছিলে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে এক্সিট পল ৰিপৰ্ট মতে প্ৰায়খিনিয়ে শুদ্ধ প্ৰতিপন্ন হৈছে কংগ্ৰেছ ধুলিসাৎ হৈ পৰিছে আৰু ইফালে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে আম আদমি পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰাও তেওঁলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে বিজেপিক আৰু বিৰোধীৰ
যি ধৰণৰ কাম থাকিব তেওঁলোকে তেনেধৰণে পালন কৰি যাব বুলি কৈছে আৰু ৰাইজৰ যি দুখ থাকিব পাৰে বা কিবা ক'বলগীয়া থাকিব পাৰে তেওঁলোকে সেয়াও শুনিব বুলি ইতিমধ্যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে জনাইছে সমান্তৰালভাৱে আকৌ সেইখিনি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো য'ত তেওঁলোকৰ মাজত সেই আনন্দ স্ফূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইফালে সিল কৰা হৈছে দিল্লীৰ সচিবালয় সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা আপৰ পৰাজয়ৰ পাছতে সিল কৰিলে সচিবালয়ৰ পৰা বাহিৰলৈ নিব নোৱাৰিব কোনো নথিপত্ৰ সিল কৰা হৈছে সচিবালয়ৰ সকলো কাৰ্যালয় নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয়লাভৰ পিছতে সচিবালয় সিল কৰি দিয়া হৈছে সচিবালয়ত আগতীয়া অনুমতি অবিহনে কোনেও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব কম্পিউটাৰ আদিও আনকি চলোৱাত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে কম্পিউটাৰ আদিও চুব নোৱাৰিব বৰ্তমান তাত সিল কৰি দিয়া হৈছে দিল্লীৰ নিৰ্বাচনত মুখ ঠেকেচা আপৰ কেইবাগৰাকীও ব্যাগুম নেতা পৰাজয় হৈছে নতুন দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পৰাজয় বৰণ কৰিছে 4089টা ভোটত পৰাস্ত হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল পৰাজিত হৈছে প্ৰাক্তন উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া আৰু কেইবাগৰাকীও ব্যাগুম নেতা পৰাজয়ৰ দিশে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীৰ জয়লাভ কালাকাজি সমষ্টিৰ পৰা আতিশীয়ে জয়লাভ কৰিছে 3521টা ভোটত জয়লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশী অৰ্থাৎ এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীৰ হাতত পৰাজিত বিজেপিৰ ৰমেশ বিধুৰী সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল অলকা লাম্বা তৃতীয় স্থানতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী অৰ্থাৎ অলকা লাম্বা থাকি গ'ল দিল্লীত বিজেপিৰ জয়লাভৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে তেওঁ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে জনশক্তিয়ে সৰ্বোচ্চ এয়া উন্নয়নৰ জয় সুশাসনৰ জয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে দিল্লীৰ ঐতিহাসিক জনাদেশৰ বাবে দিল্লীৰ জনতাক ধন্যবাদ দিছে দিল্লীৰ উন্নয়ন জনসাধাৰণৰ সামগ্ৰিক জীৱনৰ মান উন্নত কৰাৰ লগতে বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ বাবে এতিয়া দিল্লীৰ উন্নয়নত আমি বাধাহীনভাৱে আগুৱাই লৈ যাম मैं मेरे नई दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं मैं लाखों कार्यकर्ताओं का जिन्होंने जी जान मेहनत करी है उनका धन्यवाद करता हूं मैं हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये जीत अगर सही मायने में है तो उन्हीं की है क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर में विश्वास जताया है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का कि उन्होंने मिलकर ये चुनाव को अपने हाथों में लिया कमान ली धुआंधार प्रचार किया कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया तो ये सभी की जीत है पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है हमने सारे करप्शन के ऊपर में SIT का गठन करने की बात करी थी हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो ऐसी राजधानी मिलके बनाएंगे तो सारी हमारी प्राथमिकता है मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी सभी नई दिल्ली वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी हाँ जी आप सबका आशीर्वाद आप सबका प्यार आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देखिए जब 11 साल झूठ से कोई सरकार चलाएगा जब लोगों को फुसलाएगा उनकी बातें नहीं सुनेगा तब लोग उसको एक बार मौका और दे सकते हैं दूसरी बार मौका देना ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं करी है हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं उसके बाद एक्सपेक्टेड था मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री है सुबह से लीड में चल रहे हैं और आप सबके समर्थन के लिए वापस धन्यवाद थैंक यू सब बहुत टेंस थे लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी बस सही वक्त का इंतज़ार था दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी कि दिल्ली की जनता को बीजेपी पे विश्वास है दिल्ली की जनता को मोदी जी पे विश्वास है और दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी थी पिछले 26 सालों से अलग अलग सरकारों से अब डेवलपमेंट होगा क्या चाहेंगे वो सीएम बने आज हम जीत गए इस बात की हमें खुशी है देखिए ये जो चुनाव रहा है ये कोई साधारण चुनाव नहीं रहा हाँ। ये एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे काम के साथ खड़े होंगे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज देखिए हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे
भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। এটাই কথা, নিৰ্বাচনত জয় পৰাজয় আছে, কিন্তু মিছা প্ৰচাৰ মিছা প্ৰচাৰৰ যে বেছি কাম নাথাকে। আৰু আপুনি যিমানেই ভাল ভাষণ নিদিয়ক, যিমানেই ধুনীয়া ইংৰাজী নকওক কিয়, আপুনি যিমানেই প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰ্চা, ইনষ্টাগ্ৰাম, ছ'চিয়েল মিডিয়া ইত্যাদিত চৰ্চা লাভ নকৰক কিয়, সেই বস্তুটো বহুদিন নাযায়। মানুহে ডেলিভাৰী বিচাৰে, মানুহে সদায় ডেলিভাৰী বিচাৰে। কথা শুনি ভাল লাগে, 5 মাহ 6 মাহ এবছৰ ভাল লাগে। গতিকে তাৰ প্ৰতিফলন আমি তাত দেখিলোঁ। মহল্লা ক্লিনিকৰ প্ৰচাৰ হৈছিল, কিন্তু তাত মহল্লা ক্লিনিকত পেৰাচিটামল বা কেইটামান দৰৱৰ বাহিৰে একো নাপায়। তাৰ বিপৰীতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন আমাৰ অসমতেই সৰু সৰু গাঁৱতো চিকিৎসা তাতকৈ উন্নত হৈছে। গতিকে দেশৰ 140 কোটি মানুহৰ দেশৰ ৰাজধানীৰ সেই অৱস্থাটো কোনো সহ্য নকৰে। আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতি সকলোৱে আজি দিল্লীবাসী ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি বিজেপি বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰোঁতেই আজি শোচনীয় পৰাজয়ৰ মূল কাৰণ। এইটোতো লুকুৱাই আপুনি আওপকীয়াকৈ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি লাভ নাই। আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বুলি নামত ক'লোঁ, আৰু ৰাজ্য বিশেষে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সটো আমি নামানো। যদি NDAৰ বিকল্প ইণ্ডিয়া এলায়েন্স, এতিয়া NDAক প্ৰতিহত কৰিবলৈ হ'লে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে একত্ৰিতভাৱে যুঁজিব লাগিব। অসমত যেনিবা আমি নামটো যদিও বেলেগ দিছোঁ, সি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এটা অংশ। আজি হাৰিয়ানাত একেটা হ'ল। গতিকে সেই কথাখিনি আমি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ, আৰু তাৰ উপলব্ধিক আমি অসমত পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ নিদিওঁ। আমি ৰাইজে যিটো বিচাৰিছে সেইমতে আমি চলিম। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলা মানে নিৰ্বাচন আয়োগ যিটো আটাইতকৈ স্বতন্ত্ৰ সংগঠন হ'ব লাগে, সেই তাৰ বিৰুদ্ধে খেলা, CBIৰ বিৰুদ্ধে খেলা, EDৰ বিৰুদ্ধে খেলা, যিমান ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিবোৰ আছে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলগীয়া হয় আচলতে বিজেপি বুলি ক'লে। ইয়াৰ পিছতো ভবা হৈছিলে যে কংগ্ৰেছ যিহেতু অলপ পলমকৈ নামিছে পথাৰত, গতিকে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পাব নাপায় এইলৈ ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকসকলে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলে। আৰু এইটোৰ পৰা আচলতে শিক্ষা লোৱাৰ সময় আহিছে। এতিয়া বিজেপিয়ে যিবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যিবোৰ শক্তি বা যি ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাক লৈ পেলাই নিৰ্বাচন খেলিছে বা যিবোৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে যদি বিৰোধী দলবিলাক ঐক্যবদ্ধ নহয়, আৰু এইটো আকৌ প্ৰমাণ হ'ল যে ভোট বিভাজন নহ'লে বিজেপি কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে। झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी, रणनीति कार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफी टफ फाइट रही है, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। देखिए, आज बहुत ही अहम दिन है दिल्ली के लिए, और जिस दिन का सारे दिल्ली वासियों को इंतजार था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको साथ में मिलेगा। उनके विजन को साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। देखो, दिल्ली की आपदा से लोग परेशान हैं।
और आपदा से परेशान होने के कारण दिल्ली में जो लोगों ने नर्क झेला है 10 साल, तो मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, कोई 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली हर प्रकार से अपने व्यक्तित्व का भी विकास करें, अपने शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दें और अपनी परीक्षाओं की तैयारियां, क्योंकि परीक्षाओं के समय में अधिकतर बच्चे हमारे तनाव में आ जाते हैं, अनेक प्रकार की जो टेंशन होती है उनको घेर लेती है। और ये जो परीक्षा पे चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, इसके कारण से बच्चों में एक आत्मविश्वास बढ़ा है और परीक्षाओं को आसानी से वो लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं और जिसके कारण से उनका तनाव भी दूर होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। धन्यवाद। लड़ने की शायद बात हो रही है परिषद में चेयरमैन की, और बाकी ओपन ही रहेगा, सिंबल पर नहीं करेंगे। पर मिलजुल कर मेरा यही आग्रह है सबसे कि मिलजुल कर बैठकर फैसले लें और सब पार्टी के हिसाब से काम करें। আমি আশা কৰিছোঁ যে দিল্লীৰ চৰকাৰখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে যাওক। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, JP নাড্ডা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ টিম বিজেপিৰ সহযোগত আম জনতাই বিজেপিক বুজি পালে আৰু সৰ্বশেষত আমি দিল্লী 27 বছৰৰ পিছত আমি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম যেন লাগিছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যাতে দিল্লীৰ হৃদয় যি ধৰণে মানুহে একচেপ্ট কৰিছে 27 বছৰৰ পিছত, যাতে সেইটো বাস্তৱলৈ আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ। बताते हैं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, उन सब घोटालों का अंत हुआ है। और मैंने दिल्ली के अंदर अनेक स्थानों पर मैं चुनाव के दौरान गया था, वहाँ मैंने लोगों के चेहरे पर परिवर्तन की लहर देखी थी, साफ गुस्सा देखा था। दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने झूठी घोषणाएं करी, दिल्ली की जनता के साथ छल किया, लगातार 10 सालों तक आपदा की सरकार ने, आपदा पार्टी ने लोगों को छलने का काम किया। लोग बदलाव चाहते थे और डबल इंजन की सरकारें जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हर राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वो सरकारें राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं। इसीलिए हरियाणा में चुनाव हुए, तीसरी बार वहाँ पर डबल इंजन लगा, डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ,
तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी और अब 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारें जो दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, दिल्ली की सरकार उनकी पास थी, उन्होंने 27 सालों में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम किया और दिल्ली की जनता ने इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाई है और डबल इंजन की सरकार अब डबल गति से काम करेगी। दिल्ली के अंदर जो रुकी हुई योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत जैसी योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजना, अनेक योजनाएं जो दिल्ली में तेजी से दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए आनी चाहिए थी, वो योजनाएं अब दिल्ली में लाई जाएंगी और जो भी हमारा संकल्प पत्र है उन संकल्प पत्रों को आम आदमी पार्टी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी को खुद आत्मचिंतन करना होगा कि अहंकार, झूठ, भ्रष्टाचार इन चीजों से सरकारें नहीं चला करती। सरकारें व्यवस्था से चलती है, कानून का पालन करने से चलती हैं। इतिहास हम देखें तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। आज दिल्ली पूरी तरीके से एक कूड़ादान बन गई है। हालात इतने खराब हैं कि आप दिल्ली में कहीं पे भी चले जाइए, सड़कें खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, लोगों को पानी गंदा, बदबूदार, सड़ा हुआ मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है मोदी जी की गारंटी पर, नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन पर, और हम दिल्ली को वैसे सजा करके देंगे। अब इसके लिए आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जितने भी बड़े लीडर थे सब हार गए हैं, सिर्फ आतिशी जो है वो अपनी सीट से जीती है। आम आदमी पार्टी खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। अब इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। और जैसे ही हम 2.5-3 वर्षों में दिल्ली को उसकी खुशियां देंगे, तब लोगों को और कलई खुलेगी कि कितने बड़े ये अभिशाप बन के दिल्ली पर बैठे हुए थे। अब आम आदमी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, न दिल्ली, न पंजाब और न तो देश में कहीं भी। চাওক, মানুহে আচলতে এতিয়া সকলোৱে বুজি উঠিছে। কাৰণ কিয় বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ আধাৰত আৱেগিকভাৱে আপে যিটো কাম কৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি, তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি সাধাৰণতে তেওঁলোকে দুখীয়া মানুহক, বিশেষকৈ একেবাৰে গৰীব শ্ৰেণীৰ যিমান দিল্লীৰ মানুহ আছিলে, সেই মানুহসকলে পূৰ্বৰ পৰাই মানে আপৰ লগত আছে আৰু একেখিনি মানুহে লোকসভাত আকৌ আমাক মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভোট দিয়ে, যাৰ কাৰণে সাংসদৰ যিহেতু আমাৰ সংখ্যা বাঢ়িলে। গতিকে এইবাৰ মানুহে বুজি উঠিছে যে অন্তত এইকেইটা বছৰত যি দিলে এইবাৰ অন্তত দিল্লীৰ লগত বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰত থকাৰ কাৰণে বা মোদী ডাঙৰৰ লগত থকাৰ কাৰণে দিল্লীবাসী ৰাইজে, তেওঁ মানে ধনী মানুহ হওক বা দুখীয়া হওক বা মধ্যবিত্ত হওক, সকলোৱে তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা যেন মোৰ অনুমান হয়। केजरीवाल की टीम के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बड़े बड़े वादे उन्होंने किए, बड़े बड़े उन्होंने मैनिफेस्टो में अपनी चीजें डाली और ये भी बोला कि बीजेपी जो है हमारे करे हुए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें बंद कर देगी। आज कुछ भी नकारात्मक नहीं कहूंगी, इतना जरूर कहूंगी कि आज पीपल्स कोर्ट का वर्डिक्ट है और कहीं ना कहीं जनता की अदालत में उन्हें गिल्टी पाया गया है। थैंक यू। कैसा যোৱা 10 বছৰত তেওঁলোকৰ কুশাসন দিল্লীবাসী অতিষ্ঠ হ'ল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ যি বিশ্ব ভিতৰত দেশখন ভাৰতবৰ্ষ তাৰে কেন্দ্ৰ হ'ল ভূমি বুলি ক'ব পাৰি দিল্লী। গতিকে কেন্দ্ৰীয় শাসিত এই দিল্লীত এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এতিয়া নতুনকৈ গঢ়লৈ উঠিব। ৰাইজ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে। ই অকল সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে বিজেপি যে আঁকোৱালি লৈছে তাৰ এটা উদাহৰণ আপোনালোকে দেখিছে পুনৰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 11वें नंबर से 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंची,
सोशल वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ाया गया, लोगों तक डायरेक्ट पहुंचाया गया। एक तरफ थी वो सरकार जो दिल्ली में लगातार झूठी बात कर रही थी और दिल्ली में आज गली नाली सड़क की हालत इतनी खराब थी कि लोगों का उनके ऊपर चलना बहुत दूभर था। दिल्ली जल बोर्ड के सीवर ओवरफ्लो थे, लोगों का अपने घर के अंदर रहना मुश्किल था। उससे भी बड़ी बात ये हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सेंटर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी दिल्ली को नहीं मिलने दिया। आयुष्मान योजना 5 लाख का हेल्थ कार्ड उनको मिल रहा था। प्रधानमंत्री जी का राशन कार्ड कुछ नहीं जा रहा था आम आदमी पार्टी का, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं किया। तो दिल्ली की जनता ने इस बात को महसूस किया कि खुद तो काम कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जी जो दिल्ली में काम कर रहे हैं उसको भी रोक रहे हैं। और इसीलिए जनता ने सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दिया है। लेकिन अब केजरीवाल के लिए ये बोला जा रहा है कि दिल्ली तो उनकी छूट गई, हो सकता है पंजाब में जाके। देखिए, जब आदमी के ऊपर से विश्वास उठता है, उसकी झूठ की पराकाष्ठा लोगों को पता चल जाती है, तो किसी भी स्टेट में उनकी कोई जगह नहीं है। और दिल्ली छोड़िए, अब पंजाब क्या, कहीं पे भी उनको कोई जनता का विश्वास हासिल नहीं होगा। दिल्लीबासी राइजक धन्यवाद जनाइছোঁ, शुभेच्छा जनाइছোঁ। তেওঁলোকে प्रकृतते अरविंद केजरीवाলৰ नेतृत्वत जी सरकार चलि আছে, সেই চৰকাৰ যে দিল্লীবাসী ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছিল, তাক আজি প্ৰমাণিত কৰিলে। বেছি দিন টেঙা আম বেচিব নোৱাৰি গৈ থৈ সকলোৱে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিবলৈ লৈছে যে মোদীজীৰ বিকল্প নাই, বিজেপিৰ বিকল্প নাই। বিজেপিৰ নেতৃত্বতে দেশখন আগুৱাই যাব, মোদীজীৰ নেতৃত্বতে দেশখন আগুৱাই যাব। গতিকে মই দিল্লীবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল কি, ৰাইজৰ যিটো তেওঁলোকে যিটো এটা আমাক নিৰ্দেশনা দিলে বা মেণ্ডেট এটা দিলে, সেই মেণ্ডেটটো আমি মানি লৈছোঁ। আৰু ৰাইজ যিহেতু জনতা জনাৰ্দন, যিহেতু আমাক ভোট দিছে তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকে যিটো বিচাৰিছে সেইটোৱে হৈছে ফলাফল। কিন্তু কথা হ'ল কি যে আম আদমি পাৰ্টীয়ে তাত যে উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰা নাই তেনেকুৱা কথা নহয়, উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিছে। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আমি যি 2-3 বছৰত আমাৰ আম আদমি পাৰ্টীৰ যথেষ্ট ৰূপে আমাৰ ক্ষতি হৈছে দলৰ, আৰু ক্ষতি হোৱাৰ কাৰণবিলাক সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে জানে। আৰু এইখিনি সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতি।